Example, he is a good boy. Here we are telling about the quality of that boy. He is very good. She is an intelligent student. Here intelligent is your adjective of quality. It is describing about the quality of that particular student. So here यहाँ पे आपकी गुड एंड इंटेलिजेंट बोथ आर योर पॉजिटिव डिग्री, बट यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग पॉजिटिव डिग्री ओवर हेयर. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन. उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं, हम किसी से उसको कंपेयर नहीं कर रहे. नाउ नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री. इट इज़ यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल. अब कंपैरिजन कैन बी बिटवीन टू पीपल और एन इंडिविजुअल. वो एक दो पर्सन्स के बीच में भी हो सकता है, वो दो इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकता है. ओके, इट कैन बी अ लिविंग थिंग ऑल्सो, इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग एज वेल. सो इट इज़ यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल. जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ बेटर स्विमर देन हिम. हियर वी आर कंपेयरिंग दैट पर्टिकुलर गर्ल विद अ पर्टिकुलर बॉय. हम यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर बेटर. He is taller than you. Here also we are comparing two persons. दो लड़कों के means we are talking about one boy and another one is some other person. So यहाँ पे हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. So that's why we are using here comparative degree. And one of the main thing in this, the most important thing in comparative degree is it is usually followed by then. हमेशा comparative degree में आपका then word ज़रूर आता है. Means if you are confused with that which degree should we use, if some question came that insert the degree according to the sentence, so if then word will come na, we have to use comparative degree only, because comparative degree में ही आपका then word use होता है. positive degree में भी नहीं होता, ना ही आपका superlative में use होता है. we use then in comparative degree only. Next one is how many. Some pens, all dogs, several choices, few cars, etc. It means कितने, मतलब जो जिसके बारे में बात करें उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वांटिटी है, एक है, दो है, ज़्यादा है, लाइक दैट. हाउ मच. लिटिल मोटिवेशन, मच हेल्प, प्लेंटीफुल सप्लाई, एक्सेट्रा. इट मीन्स उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना है वो क्वांटिटी में, and in how many it is. Like the difference between this how many and how much is, in how many we are telling about कितने के बारे में हम बात कर रहे हैं. मतलब if we are talking about 4 persons, if we are talking about 4 buildings, like that. in numeric form how it is, numeral में वो कितने numbers में है, quantity उसकी quantity क्या है. Now let's come to types of adjective. First one, adjectives of quality. Quality means जो किसी की quality बताता हो. The adjectives which tells us about somebody's quality is known as adjective of quality. It describes size, color, shape of a person or object. वो ये 3 चीज़ें बताते हैं, size, color, shape और of a person or object. It tells us about the person or an object. For example, fair, tall. मतलब fair, tall क्या है, ये 2 qualities हैं किसी person की. Example, I have a fluffy cat at my house. Fluffy means like not exactly thin, मतलब chubby type. I have a fluffy cat at my house. So here this fluffy word is an adjective and it is describing the quality of the cat, how it is like. Next one, the table is brown in color. This brown is an adjective and it is describing about table, the quality of the table. It is brown in color. Delhi is a large city. Large is an adjective over here and it is describing about Delhi more, कि Delhi किस तरह की city है, large. So here fluffy, brown and large, these all are adjectives of quality, because here these 3 words are describing us about the noun. वो noun के बारे में हम उसकी quality के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का है. Here the cat is fluffy, the table is brown and the Delhi is a large city. So this is known, these adjectives are known as adjectives of quality, जो हमें किसी चीज़ की quality बता रहे हैं. Now next one is adjectives of quantity. Refer to the quantity how much, मतलब कितनी ज़्यादा है वो, क्या quantity है उसकी.
कितनी है वो, ऑफ अ थिंग. Example some, much, etc. These two are the words, the two words which we use under quantity. There are many more words, but I have taken only these two words, like some and much. For example, give me some water to drink. Here some is your adjective which is describing the quantity. Some मतलब थोड़ा. We cannot say give me 1 liter water to drink. Give me 2 liter water to drink. Next, I got some nice presents for Christmas this year. Here some is your adjective which is describing about the adjective of quantity, जो आपको quantity के बारे में बता रहे हैं कि मैं कितने presents लेके आया हूँ, थोड़े बहुत. some. I ate too much. Here much is an adjective which is describing about that whomsoever we are talking about, he or she ate too much, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाता है या खाती है. So here these three words are describing us the quantity, कि हमें quantity के बारे में बता रहे हैं. Now next is adjectives of number. Tell how many persons or things are meant. Means how many are there. कितने number में वो कितने हैं. Example 5, 7, several, etc. Sunday is the first day of the week. Number मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. So Sunday is the first day of the week. First is an adjective of number. We have 5 sense organs. 5 is an adjective of number. 5 passengers got down from the bus. Means these three are adjectives of number. ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे कितने सेंस ऑर्गन है, 5. कितने पैसेंजर्स हैं, 5. कौन सा डे है, संडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, पहला है. सो द एडजेक्टिव्स, these adjectives tells us about the number of persons or things. Now adjectives of number are further classified into 3 categories. One is definite, indefinite and distributive. Now let's study about definite. Definite क्या होता है? Definite means those adjectives that denote the exact numbers. मतलब कि वो adjective जो exact numbers बताते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 like that. अब 1, 2, 3, 4 we can understand by 1, 2, 3 if I am talking about 5 girls, 5 boys. So here you are getting my point. Here it is clearly it is clear, very clear कि हम कितने persons के बारे में particular बात कर रहे हैं. That is known as definite. एक proper specific हमें number के बारे में बताते हो. Definite 4, 1, 2, etc. For example, the Taj Mahal has 4 pillars. So here 4 is your adjective of number and it is definite. यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हम कितने pillars के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे सम लिखती तो इट विल बी इनडेफिनिट, क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक उसकी नंबरिंग नहीं पता. विवेक स्टूड फर्स्ट इन द फाइनल एग्जाम्स. हियर फर्स्ट इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दैट इज डेफिनेट. डेफिनेट आर दोस एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर्स, जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हो. नाउ लेट्स कम टू इनडेफिनेट. दोस एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट डिनोट द एग्जैक्ट नंबर, एग्जाम्पल सम, फ्यू, ऑल, एक्सेट्रा. The words that do not denote the exact number are known as indefinite adjective of numbers. जो हमें definite numbering नहीं बताते वो होते हैं indefinite. For example, some, few, all, etc. अब ये some, few, all से हमें नहीं पता चल रहा है कि हम कितने लोगों के बारे में, कितने persons या कितने objects के बारे में बात कर रहे हैं. For example, I have a few novels written by Shakespeare. यहाँ पे few कितनी भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है. We don't know exact number of it, कि कितनी बुक्स के बारे में, कितनी नॉवेल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सम स्टूडेंट्स आर नोटोरियस इन दिस क्लास. मीन्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोटोरियस. यहाँ पे आपको प्रॉपर उसका एवरेज नहीं पता है, यहाँ पे पूरा आपको प्रॉपर उसका परसेंटाइल नहीं पता है, नंबरिंग नहीं पता है कि हम कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं. वो 10 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, लाइक दैट. आई डोंट लाइक ऑल द वेजिटेबल्स. हेयर वी आर सेइंग ऑल द वेजिटेबल्स. कितने, और मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल, पर ऑल में कितने, मतलब स्पेसिफिकली वी डोंट लाइक 2 वेजिटेबल्स नहीं पसंद मुझे, या हियर इट इज़ नॉट मेंशन कि कौन से वेजिटेबल्स नहीं पसंद. ऑल में तो सब कुछ आ गया, पर हमें स्पेसिफिकली पता नहीं चल रहा है कि हम कितने नंबर्स, कितने के बारे में हम बात कर रहे हैं. दैट इज नोन एज इनडेफिनिट. इनडेफिनिट यू नो द एग्जैक्ट नंबर, बट इन इनडेफिनिट यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. उसमें आपको एग्जैक्ट नंबरिंग की कोई नॉलेज नहीं होती. नाउ नेक्स्ट इज
नाउ नेक्स्ट कम इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट टू अ पर्सन और अ थिंग. मतलब ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलरली किसी पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं, किसी पर्टिकुलरली थिंग के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दीज दोस. मतलब यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली पता होता है कि मैं किस पर्सन के बारे में और किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, दो शूज आर योर्स. मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक, दो शूज़. यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आपको बता रही हूँ कि मैं किन शूज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ. थर्ड, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम हेयर इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फ्लावर्स. यहाँ पे आपको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट अननोन टू यू. वो आपको पता है कि किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. दिस दैट दीज दोज, दीज थ्री वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विच पॉइंट टू अ पर्सन और अ थिंग, जो हमें किसी के बारे में बता रहे हैं. दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. द वर्ड्स दैट डू नॉट डिनोट द एग्जैक्ट नंबर आर नोन एज इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. जो हमें एक डेफिनेट नंबरिंग नहीं बताते वो होते हैं इंडेफिनिट. फॉर एग्जाम्पल सम, फ्यू, ऑल एक्सेट्रा. अब ये सम, फ्यू, ऑल से हमें नहीं पता चल रहा है कि हम कितने लोगों के बारे में, कितने पर्सन या कितने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फ्यू नॉवेल्स रिटन बाय शेक्सपियर. यहाँ पे फ्यू कितनी भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है. बट वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इट, कि कितनी बुक्स के बारे में, कितनी नॉवेल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सम स्टूडेंट्स आर नोटोरियस इन दिस क्लास. मीन्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोटोरियस. यहाँ पे आपको प्रॉपर उसका एवरेज नहीं पता है, यहाँ पे पूरा आपको प्रॉपर उसका परसेंटाइल नहीं पता है, नंबरिंग नहीं पता है कि हम कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं. वो 10 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, लाइक दैट. I don't like all the vegetables. Here we are saying all the vegetables. कितने, और means here we are talking about all. पर all में कितने, मतलब specifically we don't like 2 vegetables नहीं पसंद मुझे, या here it is not mentioned कि कौन से vegetables नहीं पसंद. all में तो सब कुछ आ गया, पर हमें specifically पता नहीं चल रहा है कि हम कितने नंबर्स, कितने के बारे में हम बात कर रहे हैं. That is known as indefinite. Indefinite you know the exact number, बट इन इंडेफिनिट यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. उसमें आपको एग्जैक्ट नंबरिंग की कोई नॉलेज नहीं होती. नाउ नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट कम इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट टू अ पर्सन और अ थिंग. मतलब ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलरली किसी पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं, किसी पर्टिकुलरली थिंग के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दीज दोस. मतलब यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली पता होता है कि मैं किस पर्सन के बारे में और किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, दो शूज आर योर्स. मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक, दो शूज़. यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आपको बता रही हूँ कि मैं किन शूज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ. थर्ड, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम हेयर इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फ्लावर्स. यहाँ पे आपको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट अननोन टू यू. वो आपको पता है कि किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. दिस दैट दीज दोज, दीज 3 words आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विच पॉइंट टू अ पर्सन और अ थिंग, जो हमें किसी के बारे में बता रहे हैं. दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ नेक्स्ट इज योर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अ कंपैरिजन कैन बी मेड यूजिंग द 3 forms ऑफ एडजेक्टिव. कंपैरिजन मतलब किसी चीज़ को, 2 चीज़ों को कंपेयर करना आपस में, 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना, उसको बोलते हैं हम कंपैरिजन. अब हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? वी कंपेयर द थिंग्स बाय यूजिंग 3 forms ऑफ द एडजेक्टिव. As we have already discussed about adjective, the words that qualify a noun or a pronoun, means the words which tells us more about noun or pronoun are known as adjective. For example, if I'm taking one example, Shimla is a beautiful place. Here this beautiful is your adjective. Okay, if I'll say, and what kind of adjective is this? Adjective of quality, because यहाँ पे वो शिमला की quality बता रहा है कि वो कैसी है, वो beautiful place है. Shimla is more beautiful than Darjeeling. Here, this one, more beautiful is your degree of comparison. यहाँ पे हमने more beautiful क्यों लिखा है? Because यहाँ पे हम 2 चीज़ों को compare कर रहे हैं, शिमला एंड दार्जिलिंग.
नेक्स्ट, शिमला इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन हिमाचल प्रदेश. यहाँ पे भी हम कंपेयर कर रहे हैं शिमला को हिमाचल प्रदेश से. हियर वी आर कंपेयरिंग ओनली टू सिटीज़, शिमला एंड दार्जिलिंग. यहाँ पे हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, पर हम यहाँ पे शिमला को कंपेयर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पूरे स्टेट से, कि उसके अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड मोस्ट. सबसे ज़्यादा पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस कौन सी है? शिमला. नाउ ऑल द 3 सेंटेंसेज आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ प्लेस. इन तीनों सेंटेंस में आपको क्वालिटी ही पता चल रही है, कुछ और पता नहीं चल रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ शिमला ओनली, बट द डिग्री ऑफ द सेम क्वालिटी स्पोकन अबाउट इज डिफरेंट इन 3 सेंटेंसेस. मतलब कि यहाँ पे हम बता रहे हैं क्वालिटी के बारे में, बट इन तीनों में हमें ये जो इसका मीनिंग है वो चेंज है. इन ऑल 3 सेंटेंसेस इट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट जब हम तीनों को पढ़ेंगे तो उनका मीनिंग क्या निकल रहा है? डिफरेंट निकल रहा है. द मीनिंग इज डिफरेंट. Here we have just said Shimla is a beautiful place, that's it. Here we have compared Shimla with Darjeeling, and here we have compared Shimla with all the other cities which are in this state, in Himachal Pradesh. तो इसलिए इन तीनों का मीनिंग अलग है. in the first one we are talking about Shimla, in the second one we are comparing Shimla with Darjeeling, and in third we are comparing Shimla with Himachal Pradesh. कि पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस कौन सी है? शिमला. Now, there are 3 degrees of comparison, 3 degrees of adjectives. Positive degree. First is positive, second is comparative, and third is superlative degree. Now, let's talk about positive degree. It is used when no comparison is made. Positive degree हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी तरह का कोई comparison नहीं करें. There is no comparison. जब हम comparison नहीं करते. For example, here we have already टॉक्ड अबाउट दिस एग्जाम्पल. शिमला इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. यहाँ पे हम किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. सो पॉजिटिव डिग्री कब यूज़ होती है? जब हमें कुछ कंपैरिजन ना करना, जब हमें सिंपल एक स्टेटमेंट देनी हो. एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय. हेयर वी आर टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट बॉय. ही इज़ वेरी गुड. शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. हेयर इंटेलिजेंट इज़ योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. सो हेयर यहाँ पे आपकी गुड एंड इंटेलिजेंट बोथ आर योर पॉजिटिव डिग्री, बट यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग पॉजिटिव डिग्री ओवर हियर. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 पर्सन. उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं, हम किसी से उसको कंपेयर नहीं कर रहे. नाउ नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री. इट इज़ यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल. अब कंपैरिजन कैन बी बिटवीन 2 पीपल और एन इंडिविजुअल. वो 2 पर्सनस के बीच में भी हो सकता है, वो 2 इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकता है. ओके, इट कैन बी अ लिविंग थिंग ऑल्सो, इट कैन बी अ नॉन लिविंग थिंग एज वेल. सो इट इज़ यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल. जब 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ बेटर स्विमर देन हिम. हियर वी आर कंपेयरिंग दैट पर्टिकुलर गर्ल विद अ पर्टिकुलर बॉय. हम यहाँ पे 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर बेटर. He is taller than you. Here also we are comparing 2 persons. 2 लड़कों के means we are talking about one boy and another one is some other person. So यहाँ पे हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. So that's why we are using here comparative degree. And one of the main thing in this, the most important thing in comparative degree is it is usually followed by then. हमेशा comparative degree में आपका then word ज़रूर आता है. Means if you are confused with that which degree should we use, if some question came that insert the degree according to the sentence, so if then word will come na, we have to use comparative degree only, because comparative degree में ही आपका then word use होता है. positive degree में भी नहीं होता, ना ही आपका superlative में use होता है. we use then in comparative degree only. next is superlative degree. Superlative degree क्या होता है? it is used when more than 2 persons or objects of the same class are compared. Here also comparison is made, but the difference is यहाँ पे हम 2 से ज़्यादा को compare करते हैं, and comparative में हम सिर्फ 2 को compare करते हैं.
और यहाँ पे हम 2 से ज़्यादा को कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द बेस्ट इन दिस क्लास. अब पूरे क्लास में सिर्फ 2 बच्चे तो होंगे नहीं, 2 क्लास में स्ट्रेंथ कैन बी 40, 50, कितने भी हो सकते हैं. तो ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास. मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट फ्रूट. मतलब यहाँ पे जितने भी फ्रूट हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट किसको कह रहे हैं? मैंगो को. सो हियर वी कंपेयर, द कंपैरिजन इज मेड between more than 2 persons or objects and it is preceded by the. preceded मतलब कि उस पर्टिकुलर डिग्री से पहले हमेशा द आता है. एज यू कैन सी इन बोथ एग्जाम्पल्स द इज देयर. यहाँ पे भी द है, यहाँ पे भी द है. तो अगर मीन्स जस्ट टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ sentences that whether it is superlative or in comparative. So how can we identify? If then is there, then we have to insert comparative degree. If the is there, then we have to add superlative degree. So these three are your 3 types of degree: positive degree, comparative degree and superlative degree. Now let's come to formation of डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि हम कैसे उसको फॉर्म करते हैं. बाय एडिंग ER एंड EST. मतलब हम एंड में क्या लगाते हैं, उसके ER और EST यूज़ करते हैं. ये आपका पहला पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में आपका क्या है, कोल्ड. तो कंपैरेटिव में क्या आ जाएगा, कोल्डर, एंड सुपरलेटिव में कोल्डेस्ट. हेयर वी हैव इंसर्टेड ER, यहाँ पे हमने EST लगाया है. हाउ वी हैव टू फॉर्म अ डिग्री ऑफ डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ER और EST ऐड करके. तो यहाँ पे हमने एंड में क्या लिखा है, यहाँ पे ER एंड EST. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. So as you can see in the comparative degree, we have inserted at the last ER, and here in superlative we have added EST, EST and EST. So like this we have the formation is made of positive and comparative and superlative. Now by adding R and ST to the एडजेक्टिव एंडिंग इन ई, मतलब कि जो भी एडजेक्टिव ई से एंड हो रहे हैं, मतलब अगर लास्ट वर्ड उनका ई है तो हमें उसमें कंपैरेटिव में क्या आ जाएगा, आर, और सुपरलेटिव में एस टी. फॉर एग्जांपल लार्ज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई इज़ द लास्ट वर्ड, और यहाँ पे व्हाट इज इट इज रिटन दैट वी हैव टू ऐड आर एंड एस टी टू द एडजेक्टिव एंडिंग इन ई. सो हियर ई इज देयर. सो कंपैरेटिव डिग्री विल बिकम लार्जर एंड सुपरलेटिव विल बिकम लार्जेस्ट. हियर ऑल्सो brave, braver, bravest. E is there. If in the end adjective is E, so we have to just insert ER in comparative and ST in superlative. Now next one is by removing the final Y and adding IER and EST. मतलब कि जो अगर एंड में, वर्ड के एंड में अगर आपका Y आता है तो आपको उसमें क्या ऐड करना है, IER इन कंपैरेटिव, EST इन सुपरलेटिव. फॉर एग्जांपल हैप्पी, यहाँ पे आपका Y है तो आपने यहाँ से Y हटा दिया, यहाँ पे क्या आपने इंसर्ट कर दिया IER, एंड इन सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट. सेम लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट. हियर द इन बोथ द वर्ड्स एंड वर्ड इज योर Y, सो वी हैव removed this Y word and instead of Y we have added IER and EST. IER in comparative, in superlative EST. Now by doubling the final consonants, means when the last letter is a consonant and the second last letter is vowel, we have to add ER and EST. मतलब कि अगर आपका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हुआ और सेकेंड लास्ट लेटर आपका वॉवल हुआ तो हम क्या ऐड करेंगे, ER करेंगे कंपैरेटिव में, एंड EST वी विल कंपेयर इंसर्ट इन सुपरलेटिव. फॉर एग्जांपल बिग. अब आपका G क्या है यहाँ पे कॉन्सोनेंट, बट सेकेंड लास्ट वर्ड क्या है आपका, वॉवल है. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ER बाय एडिंग ER हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया कंपैरेटिव में, सो इट बिकेम बिगर, एंड इन सुपरलेटिव EST, सो इट बिकेम बिगेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. सिमिलरली हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. thin, thinner, thinnest. Alright, here because these end words are your consonants and this second last word are your vowels, I, O, I. These three are your vowels, second last word. If the second last word is your vowel and the last word is your consonant, so we have to add ER and EST. Alright. नाउ नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ वन, बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट. अब हमें बताना है कि मोर और मोस्ट कहाँ यूज़ होता है. इफ़ इट इज़ लाइक फेथफुल,
then it will become more faithful, most faithful. It is more faithful, most faithful, active, more active, most active, because there is no word like faithful or faithfulest. So we have to add more and most. यहाँ पे हमने RE ऐड किया, यहाँ पे हमने ST ऐड किया, मतलब इन कंपैरेटिव वी विल यूज़ मोर, क्योंकि हम सिर्फ वाई वी हैव यूज्ड मोर, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ दो पर्टिकुलर पर्सन या दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंपेयर करते हैं, बट इन सुपरलेटिव हम दो से ज़्यादा की क्वांटिटी लेते हैं, इसलिए वी आर यूजिंग मोस्ट. दैट इज़ वाई फेथफुल बिकम मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. नाउ नेक्स्ट वन, इरेगुलर कंपैरिजंस, मतलब कि जो बहुत ही इरेगुलर होते हैं. मीन्स यहाँ पे आपका जो वर्ड है, जो आपको पॉजिटिव में जो वर्ड आता है यूज़ होता है, वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बिल्कुल चेंज हो जाता है. जैसे बैड का क्या होगा, वर्स, वर्स्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. मच का क्या होगा, मोर एंड मोस्ट. यहाँ पे हमने बैड को बैडर, बेडेस्ट नहीं किया, गुड को गुडर, गुडेस्ट नहीं किया, मच को मचर एंड मचेस्ट नहीं किया. सो व्हाट इट बिकेम, वर्स, वर्स्ट, गुड का बेटर, बेस्ट, मच का मोर एंड मोस्ट. So these are your irregular comparisons. So these are the formation of your degree of comparison by adding ER, by adding EST, so on, by adding more and most. Okay, these are your formation of degrees of comparison. Solve some exercise so that we can understand it more clearly. In the following sentence, you have to underline each of the adjective. Here we have to tell which the adjective in the sentence. That program is a good comedy. Here, what is the adjective? Good. Because here it is describing us the quality of that program. कि वो program कैसा था, बेकार था, अच्छा था, like that. 2 people can set up camp in a short time. Okay. Here short is your adjective. James is popular with old and young people. Here old and young is your adjective because it is describing the quality कि James किस में popular है, old और young people में. Those long questions were hard for me. Here your those is your adjective. The melon was large and sweet. Here what is your adjective? Large and sweet, quality. The window of the store was full of new attractive clothes. Means here attractive is your quality. Little work can be done on the project now. Here little is your adjective because it is describing about the quantity. 1,000 turned up for the first conference. 1,000 and first is your adjectives and this is your adjective of number. यहाँ पे आपको नंबर, स्पेसिफिक नंबर पता चल रहा है. डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली नंबर मेंशन है. 1,000 है, यहाँ पे फर्स्ट है. Many students study foreign languages. Here this many is your adjective and it is adjectives of quantity. यहाँ पे आपको वो quantity के बारे में बात कर रहे हैं, कितने हैं. Much rain fell during the month of June. Here much is your adjective of quantity because it is describing about the quantity, कितनी बारिश हुई. We cannot count but at least we can just tell कि कितना हुआ, कितनी quantity है. So in this particular sentences we have identified the adjective. So as your homework I want you all to solve this exercise and you have to write down the adjective types also in front of it. Means after identify the adjective you have to write the adjective type also कि ये particular adjective जो आपने underline किया है वो किस type का है. For example here good is your adjective of quality. So by underlining the good you have to write down in front of it adjectives of quality like that. So I hope you have understood this topic and in the homework just solve this exercise by your own. And thank you and have a very nice day.